Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDA practice series. But before we begin, a very important announcement, a very important information for all the CAT 25 aspirants, right? So we are actually starting with the next batch for CAT 25, right? And that is starting from the 5th of May. The prices have been slashed, right? So if you want a comprehensive program, right, the entire program, you can actually enroll for this particular batch. The batch starting date is 5th of May. Don't forget. And if you want to inquire about this particular batch, the numbers will be there in the description, right? You can also call the team and get more information on this particular batch, right? So that was the important announcement to begin with. Now, let's start with today's session. And today we'll be starting with a new topic in this particular series, right? अभी हमने last topic में game groupings and conditionalities खत्म किया था with a very good set. So today we'll be beginning with data interpretation. Now this will be a long sequence because data interpretation में we'll be covering a lot of topics, right? कभी tables करेंगे, कभी bar graph करेंगे, pie charts, line graphs, miscellaneous sets, mix charts and everything. So everything combined, right, will be grouping it under the domain of calculative DI. So this is part one of calculative DI. Now let's start with the first set. थोड़ा सा practice mode में ही रहेंगे हम and उसी के थ्रू हम चीज़ें सीखेंगे भी obviously जैसा कि हम हमेशा करते हैं. So let's start with a small set, right? बहुत ज़्यादा questions नहीं है. We only have 3 questions based on this particular given data. Now, as always, first pause this video right here itself. Try the set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you would have tried this particular set. I hope you would have got this correct. Now let's start understanding this particular problem. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? The following table gives the information about the sale of two products X and Y manufactured by company Z in urban and rural areas during the years 2009 to 2012. तो हमारे पास एक कंपनी Z है, वो क्या करती है? दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y, राइट? और ये किस में मैन्युफैक्चर करती है? प्रोडक्ट एक्स भी अर्बन एंड रूरल एरिया में मैन्युफैक्चर हो रहा होगा और वाई भी ऑब्वियसली फिर हमारा रूरल एंड अर्बन एरियाज में मैन्युफैक्चर होगा, है ना? ऐसी तो हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, कंपनी जेड के दो प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, और बिकॉज वो कंपनी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है वो रूरल एंड अर्बन में करती है, तो वी कैन सिंपली से कि हाँ प्रोडक्ट एक्स भी हमारा रूरल एंड अर्बन में मैन्युफैक्चर होगा एंड प्रोडक्ट वाई भी हमारा रूरल एंड अर्बन में मैन्युफैक्चर होगा. सो दैट इज द सिनेरियो we have. Then it is given the total sales of the company is equal to total sales of Y urban plus rural, ये भी हमने स्टार्टिंग में समझा, प्लस टोटल सेल्स ऑफ एक्स दैट इज अर्बन प्लस रूरल, राइट? एक ट्री की तरह इमेजिन कर लेना. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थ्रू अ ट्री. तो जो टोटल सेल्स होगा कंपनी जेड का वो दो पार्ट से बना होगा, प्रोडक्ट एक्स प्लस प्रोडक्ट वाई. And because every product is being sold in, yeah, manufactured in the rural and urban areas, तो X में भी आपका urban होगा, X urban, and X में तुम्हारा क्या होगा? दूसरा पार्ट X rural. सिमिलरली Y में भी अगर हम बात करें, Y को यहाँ पे बाइफरकेट करते हैं दो पार्ट्स में, तो Y में भी दो पार्ट होंगे, एक तुम्हारा Y होगा अर्बन और दूसरा होगा तुम्हारा Y रूरल. तो Y में अगर हम टोटल सेल्स की कभी भी बात करेंगे तो Y अर्बन प्लस Y रूरल होगा, और अगर हम X में कभी भी टोटल सेल्स की बात करेंगे तो X अर्बन प्लस X रूरल होगा. वन मोर स्मॉल थिंग जो हम खुद ही से यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं, अगर टोटल अर्बन सेल्स की बात हुई, राइट, लेट मी चेंज द कलर. अगर कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर टोटल अर्बन सेल्स की बात हो रही है तो टोटल अर्बन सेल्स समझ रहे हो, फिर दिस प्लस दिस होगा, क्योंकि अर्बन में दो पार्ट्स होंगे ना, फिर एक्स का अर्बन प्लस वाई का अर्बन. सिमिलरली अगर कभी भी रूरल की बात हो रही होगी, टोटल रूरल की बात हो रही होगी, तो वो टोटल रूरल कैसे निकलेगा तुम्हारा? एक्स का रूरल प्लस वाई का रूरल. सो ये अपने दिमाग में बैठा लो, ये सिंपल सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी दो चीज मिलके क्या क्वांटिटी आपका डिनोट कर रहा होगा, राइट? सो बिकॉज यही चीज हम इसमें क्या करने वाले हैं, कंटिन्यूसली यूज करने वाले हैं. नाउ लेट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टेबल. अब अगर मैं टेबल को नोटिस करना स्टार्ट करूं, नोटिस करेंगे, दैट डजंट मीन कि हम बैठ के पूरी जितनी भी मिसिंग वैल्यूज है वो फिगर आउट कर लेंगे. इफ आई क्विकली नोटिस फॉर एग्जांपल, जैसे 2009 में क्या हो रहा है,
2009 में मेरे को x का अर्बन का वैल्यू पता है, x रूरल का वैल्यू पता है, y अर्बन मिसिंग है, y रूरल हमारा गिवन है, एंड देन वी हैव टू वैल्यूज मोर जो कि परसेंट के वैल्यूज है। बट एक क्या है, पहला वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, सेल्स ऑफ कंपनी एक्स और प्रोडक्ट एक्स, सेल्स ऑफ एक्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2009 में आपको बताऊं, तो 2009 में अगर मैं अपने पर्टिकुलर वैल्यूज को नोटिस कर रहा था, तो एक्स अर्बन और एक्स रूरल है ना, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को एड अप कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्स का टोटल सेल्स मिलेगा। सो एक्स का टोटल सेल्स हमारा फिर कितना बन जाएगा, 3086 एंड 24 34। लेट्स एड अप दिस, 640 1 2 1 5 एंड 5 55 20 बनेगा। तो ये है कंपनी या प्रोडक्ट एक्स का टोटल सेल्स अर्बन प्लस रूरल मिला के। अब बिकॉज ये मेरे पास परसेंटेज है एंड इफ आई अंडरस्टैंड परसेंटेजेस, तो ये क्या है, सेल्स ऑफ एक्स जो कि 5520 है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, जेड की बात कर रहा है, टोटल सेल्स एक्स एंड वाई मिला के। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं 60% ऑफ द टोटल सेल्स एक्स है ना, टोटल सेल्स का 60% एक्स को डिनोट करता है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी पता है कि ये 60% की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 5520, राइट। सो दिस इज 55210। तो 60% मेरा 5520 को डिनोट करता है। सो फ्रॉम दैट आई कैन एक्चुअली से कि मेरा टोटल सेल्स कितना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं 60% ऑफ द टोटल सेल्स हैज टू बी इक्वल टू 5520। तो वहां से तुम क्या निकाल सकते हो, टोटल सेल्स निकाल सकते हो। अब तुम चाहो एक्स लेना चाहो तो लिख सकते हो, या सिंपली 60% हमारा अगर इतने के बराबर है तो 100% हमारा कितने के बराबर होगा वो फिगर आउट करना है। तो वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, सिंपली 60% अगर 5520 के बराबर है, 1% कितने के बराबर होगा, 5520 डिवाइडेड बाई 60, ये 1% की वैल्यू होगी। तो 100% कितने के बराबर होगा, ऑब्वियसली इनटू 100 करके 5/3 टाइम्स बेसिकली, राइट। अब अगर आप इसको सिंपली सॉल्व कर दोगे, यू कैन एक्चुअली डू दिस, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6954, 6954, 12 बचेगा 92, एंड बाकी यार डबल जीरो है, तो 9200 वुड बी द टोटल सेल्स ऑफ दिस कंपनी Z in 2009। दैट इज हाउ विल बी कैलकुलेटिंग थिंग्स ओवर हियर, राइट। सो अब निकाला है हमने 9200, इसको लिख भी लेते हैं। सो आई एक्चुअली गो एंड राइट टोटल सेल्स, TS लिख दे रहा हूं। सो TS यहां पे कितना है हमारा, 9200। आई होप द आइडिया इज क्लियर। यही आइडिया हमें बार बार क्या करना है, क्वेश्चंस में यूज करना है। सो एक काम करते हैं, आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट। नाउ अब दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो बैठ के हम पूरी वो टेबल फिल कर ले, टोटल सेल्स भी निकाल लें, एंड ये भी देख ले कि क्या हम किसी तरीके से वो मिसिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। बट अ स्मार्टर वे टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वुड बी टू लुक एट द क्वेश्चंस इटसेल्फ, कि मेरे को क्वेश्चंस में क्या क्या फिगर आउट करना है। हम क्या करते हैं, वही चीज एक्चुअली में फिगर आउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर सोल्ड इन रूरल एरियाज इन 2012। तो हमारा फोकस पहले तो कहां जाएगा, 2012 में जाएगा। अब यहां पे भी मेरे को क्या निकालना है, प्रोडक्ट एक्स रूरल। तो प्रोडक्ट एक्स का रूरल वाला नंबर, तो मेरे को ये वाला नंबर एक्चुअली में फिगर आउट करना है। हाउ डू आई फिगर आउट दैट नंबर, तो सबसे पहले नोटिस करो इस पर्टिकुलर कॉलम में दिया क्या क्या है तुम्हारे पास। तुम्हें एक्स अर्बन पता है, एक्स रूरल मिसिंग है। तुम्हें वाई अर्बन पता है, वाई रूरल मिसिंग है। तो ये चारों वैल्यूज में जो दो वैल्यूज अपने को पता है वो 3227 और 2473 है ना। अब अगर मैं नोटिस करूं इन दोनों को कंबाइन तरीके से देखने का, राइट, तो ये दोनों एडअप करके क्या चीज डिनोट करेंगे, एक्स अर्बन प्लस वाई अर्बन। रिमेंबर द स्टार्टिंग 5 मिनट्स ऑफ द सेशन, मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे को टोटल अर्बन कभी भी निकालना है तो मैं एक्स का अर्बन प्लस वाई का अर्बन एडअप करूंगा ना। तो एक्स का अर्बन प्लस वाई का अर्बन अगर मैं एडअप करूं तो टोटल अर्बन, टी लिख दूं, टोटल अर्बन की मेरी वैल्यू आ जाएगी। और वो बनेगा कितना, 3227 प्लस 2473। नाउ 3200 2400 वुड बी 5600,
और 73 प्लस 27 इज वन मोर 100. सो 5600 प्लस 100 दैट इज 5700. तो टोटल अर्बन का मेरा वैल्यू बन जाएगा 5700. नाउ अंडरस्टैंड, हमारे पास यहां पे जो परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, अर्बन एंड रूरल के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि मेरे को वैल्यू पता चली है टोटल अर्बन की, ध्यान रखना. तो अगर मैं अपना लास्ट वाला रो नोटिस करता हूं तो इसमें मेरे को क्या पता है, सेल्स इन रूरल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स. तो मतलब ये कह रहे हैं कि कंपनी जेड में जो भी टोटल सेल्स हुआ होगा उसका 43% क्या रहा होगा, तुम्हारा रूरल रहा होगा. राइट, जो भी तुम्हारी पूरी कंपनी जेड का इस 2012 में जो भी टोटल सेल्स रहा होगा उसका 43% क्या है, रूरल है. मुझे तो अर्बन पे आना है ना, बिकॉज मेरे पास एक्चुअल वैल्यू किसकी है, टोटल अर्बन की. तो अगर टोटल में से 100% में से 43% रूरल था तो ऑब्वियसली 100 माइनस 43 दैट इज 57% हमारा क्या था, अर्बन रहा होगा. तो एक्चुअली में 57% ऑफ द टोटल सेल्स, 57% of the total sales would actually correspond to nothing but 5700. अब यहां से तुरंत से, जैसे कि हमने इसमें टोटल निकाला था 2009 में, उसी तरीके से यहां का भी टोटल आ जाएगा. 57% ऑफ द टोटल सेल्स इज करस्पॉन्डिंग टू 5700. तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूं तो 100% कितने को करस्पॉन्ड करेगा, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना. 57 का 5700 है, तो 100% का 100 एंड 00 लग जाएगा, दैट इज 10,000. सो यहां पे 2012 में जो हमारा इस कंपनी का टोटल सेल्स होगा, अगर मैं उसको पहले लिख लूं, दैट वुड बी 10,000. राइट, दैट वुड बी 10,000. पूछा क्या था मेरे को, रूरल एरियाज में एक्स का नंबर. अब मेरे को ये वैल्यू चाहिए. अब ये कैसे निकाले, तो नोटिस करो, इससे ऊपर वाला जो परसेंटेज था वो इसी चीज के लिए हेल्प करेगा. उसमें क्या था, द सेल्स ऑफ एक्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स. तो अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल सेल्स मेरा 10,000 है, राइट, अगर मेरा टोटल सेल्स कितना है, 10,000 है, तो 10,000 का 55% क्या होगा, एक्स का सेल होगा. तो 10,000 का 55% वुड बी 5500. तो एक्स का जो टोटल सेल्स है दैट इज 5500. दैट ऑल्सो मीन्स कि एक्स का जो टोटल सेल्स है, जो कि एक्स अर्बन प्लस एक्स रूरल है, दैट कंबाइंड इज व्हाट, 5500. आई होप दिस इज क्लियर. राइट, वो हो गया हमारा 5500. तो अब अगर मेरे को फाइनली ये वाला नंबर निकालना है, दैट इज 2012 में एक्स का रूरल वाला टोटल सेल्स, तो इन दोनों का एडिशन मेरे को पता ही है, 5500 है. 5500 में से 3227 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड विल गेट आवर आंसर. कितना हो जाएगा बाय द वे, सो 3227 एंड 5500, सो 2000 तो आएगा ही, एंड 273 और आएगा. ठीक है, सो 273 आएगा और बाकी 5000 3000 दैट इज 2. सो 2273, राइट, 2273 वुड बी द number of units of product X that was sold in rural areas. X rural का number. So पहले क्वेश्चन का आंसर is 2273. I hope this is clear with everyone. आगे यहाँ का टोटल सेल्स हमारा निकला ही हुआ है 10,000. कुछ भी और निकालना होगा तो उसको भी हम फिगर आउट कर लेंगे. नाउ लेट्स रिमूव दिस. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम डन. सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड कंपनी जेड हैव द हाईएस्ट सेल्स. अब यही जो चीज तुमने दो ईयर्स के लिए फिगर आउट करा था ना, यहाँ पे कितना है 9200, यहाँ पे टोटल सेल्स कितना है 10,000. तो वही चीज तुम्हें 2010 और 2011 के लिए और फिगर आउट करना है. फिर हम बस इन चारों ईयर्स में देख लेंगे कि मैक्सिमम हमारा सेल्स कहाँ पे हुआ है, हाईएस्ट सेल्स हमारा किस पर्टिकुलर ईयर में एक्चुअली में हुआ है. लेट्स रिपीट द सेम प्रोसेस. पहले यहाँ पे नोटिस कर लो कि क्या क्या है. यहाँ पे मेरे पास जो परसेंट है वो किसका दिया है, रूरल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स. तो क्या मेरे पास रूरल के नंबर है, मेरे पास देखो डायरेक्टली रूरल के नंबर नहीं है, बट इनडायरेक्टली मेरे पास अर्बन के एरियाज नंबर है. अर्बन का अगर नंबर देखो 2010 और 2010 में एक्स अर्बन और वाई अर्बन, तो ये दोनों वैल्यूज एड अप करके मेरा क्या आ जाएगा, यहां करें,
मेरा जो टोटल अर्बन आ जाएगा, नाउ टोटल अर्बन मेरा कितना आ जाएगा, 2409 2901। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 लास्ट में दिखेगा, एंड 24 एंड 29, सो दैट वुड बी 53। सो 5310 मेरा टोटल अर्बन आ जाएगा। अब मैं इसको परसेंटेज से कैसे रिलेट करूं, तो नोटिस करो, टोटल सेल्स का 41% रूरल है, यही तो मतलब हुआ, टोटल सेल्स जो भी होगा इस पर्टिकुलर ईयर में, उसका 41% क्या है, रूरल है। तो ऑब्वियसली 100 माइनस 41, 59% क्या होगा हमारा, अर्बन होगा, राइट। 59% क्या होगा हमारा, अर्बन। तो एक्चुअली में 59% ऑफ द टोटल सेल्स इज करस्पॉन्डिंग टू 5310। तो इससे अब ना वापस से क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स 59% ऑफ टोटल सेल्स इज 5310। तो मेरा टोटल सेल्स एक्चुअली में कितना आ जाएगा, 59 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो सिंपली 5310 होल डिवाइडेड बाई 59 एंड इनटू कितना, 100। नाउ हाउ मच दिस वुड बी, कितना टाइम्स कटेगा कि 1 आ जाएगा, 99 इट इज 81 ना, तो एक बार चेक करें, 59 450 और 81, 450 और 81, यस 531 होता है। सो ये कितना टाइम्स कटेगा, 59 इंटू 9 इज 531 एंड एक जीरो। सो 90 इंटू 100, यहाँ का जो टोटल सेल्स हो गया हमारा, यहाँ का जो टोटल सेल्स है दैट इज 90 इंटू 100, दैट इज 9000। परफेक्ट, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 9000। ये हो गया। नाउ फाइनली लेट्स डू दिस फॉर 2011। अब 2011 में 39% दिया हुआ है, मतलब रूरल का परसेंट दिया है, इनडायरेक्टली मेरा अर्बन का भी परसेंट दिया हुआ है। अब देखते हैं कि किसकी वैल्यू हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास एक्स अर्बन मिसिंग है, लेकिन मेरे पास एक्स रूरल भी है और मेरे पास वाई रूरल भी है। तो मैं रूरल का नंबर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो रूरल का जो टोटल एडिशन बन जाएगा 1570 प्लस 1199, हाउ मच दिस वुड बी, एक लास्ट में 9 और 9 7 16, 6 1 5 6 7 एंड 2, 2769। तो ये हमारा टोटल रूरल हो गया। नाउ रूरल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 39%। तो बस हम ये बोल रहे हैं कि 39% ऑफ द टोटल सेल्स इज एक्चुअली इक्वल टू 2769। तो 39% अगर हमारे 2769 के बराबर है, तो टोटल सेल्स 100% के करेस्पॉन्डिंग होगा। तो टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही सेम प्रोसेस, 2769 होल डिवाइडेड बाई 39 एंड ऑब्वियसली इनटू कितना, 100, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट कर ले। सो दिस विल गेट कैंसल्ड बाई 3 फर्स्ट, तो 3 इंटू 13 होता है, 3 इंटू 9 इज 27, 3 2 6 3 3 9, देन 923 बाई 13, तो 13 इंटू 7 इज 91 और 13 बचेगा, सो दैट इज 1। तो 71 इंटू 100, ये तो बहुत कम आ गया। यहाँ पे जो हमारा टोटल सेल्स है दैट इज 71 इंटू 100, that is 7100. So now we are actually in a position to answer the second problem. In which of the following years did company Z have the highest sales? तो किस ईयर हमारा जो टोटल सेल्स है वो हाईएस्ट है, ऑब्वियसली फिर हमारा कहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे 2012 में we have the highest sales, that is option D, right? So that is the final answer to the second problem. Now finally let's take a look at the last problem of this particular set. थर्ड क्वेश्चन, इन 2009 यहां पे द प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाज 2450। तो एक्स का हर एक प्रोडक्ट कितने का है हमारा, 2450 का है, फाइन। What was the approximate total revenue from the sales of product X in that year? So this is a straightforward problem. मेरे को X का total sales actually में चाहिए किसमें, 2009 में। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन है, ये तो मैं तुम्हें करने को छोड़ दूंगा। तो सीधा सीधा मेरे को अगर टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ X मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट X का जो सेलिंग प्राइस है, राइट, कितना है 2450। तो 2009 में हमारा ये टोटल कितना था, ये तो हमने लिखा भी हुआ है, दिस वाज 5520, इसी का था ना, 54 और 120, यस 5520। सो द आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम वुड बी 5520 यूनिट्स एंड पर यूनिट हमारी प्राइस कितनी है, 2450।
right? And this multiplication will give you the answer. क्रोर वगैरह तक जा सकता है, डेफिनेटली फाइन. बट हाँ, दिस इज डेफिनेटली एन इजी प्रॉब्लम. इसमें कुछ नहीं था. मेन जो अपने को लॉजिक है वो किस में है, फर्स्ट एंड द सेकंड प्रॉब्लम. एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टेबल इज ऑल अबाउट, किस तरीके से आपका डेटा आपस में रिलेट हो रहा है, परसेंटेज का आपका बेसिक आइडिया इसमें एक्चुअली में अप्लाई हो रहा है. Right, so I hope you understood this particular set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. See you in the next video. Thank you. Bye.